अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंसर्न है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। यानी इससे पिछले लेक्चर का थोड़ा सा मटेरियल हम रिव्यू करेंगे और थोड़ा सा इसको ज़रा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। In order to give the concept of electric potential, the potential at a point in electric field, we must have a reference to which we assign zero electric potential, and this point is usually taken at infinity. When at a point lies at infinity, its electric potential would be zero. If we take A to be at infinity and choose VA is equal to zero, यानी उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा. The electric potential at B would be VB, work done in bringing the charge from infinity to point B divided by Q naught, and by dropping the subscripts V is equal to W by Q. इसको ज़रा थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं. In order to give the concept of electric potential at a point in electric field, we must have a reference point to which we assign zero electric potential. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एक ऐसा मुकाम होना चाहिए कि जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज़ीरो कंसिडर कर लें और उस पॉइंट के हिसाब से किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल मेजर करें. We must have a reference to which we assign zero electric potential, and this point is usually taken at infinity. When at point lies at infinity, यानी when a point, यहाँ at नहीं है, ये गलती से यहाँ पे a होना चाहिए. When a point lies at infinity, its electric potential would be zero. यानी जब आप किसी इन्फिनिट डिस्टेंस पर होंगे तो किसी इन्फिनिट डिस्टेंस पर मौजूद पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा. If we take A to be at infinity and choose VA is equal to zero, यानी अगर पॉइंट A इन्फिनिटी पे लाई करता है तो इस पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B will be VB W infinity to B divided by Q naught, यानी वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज in bringing the positive charge from infinity to point B, and by dropping the subscripts. अगर हम यानी infinity to B वाला सबस्क्रिप्ट ख़त्म कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा. Which states that electric potential at any point in electric field is equal to the work done on the unit positive charge in bringing the charge from infinity to that point, keeping this charge in equilibrium. It is to be noted that point at which
it is to be noted that potential at that point is still potential difference between the potential at that point and the potential at infinity. Both potential and potential difference are scalar quantities because work W and charge are scalars. इसको अब थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं. The equation W divided by Q states that electric potential at any point in the electric field is equal to the work done on the unit positive charge in bringing the charge from infinity to that point. यानी एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी से एक पॉइंट बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा दैट वुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए. इट इज़ टू बी नोटेड that potential at that point is still potential difference. यानी पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो उस वक्त भी पोटेंशियल डिफरेंस है. किन दो पॉइंट्स के दरमियान? एक ऐसा पॉइंट जो इन्फिनिटी पर है और एक वो पॉइंट जो पॉइंट एज अ पॉइंट B पे लाई कर रहा है. द पोटेंशियल at that point यानी पॉइंट B का पोटेंशियल is still the potential difference. वो potential difference ही है between the potential at that point and the potential at infinity. Both potential and potential difference are scalar quantities because both potential and potential difference are scalar quantities because work W and charge are scalar. यानी इसमें ये बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही है, यानी मुकाम B पर पोटेंशियल जो है वो दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस ही है. यानी एक ऐसे पॉइंट का पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पर है और वहाँ से आप चार्ज को वर्क करते हुए पॉइंट B तक ले आए और पॉइंट B तक का पोटेंशियल भी इन्फिनिटी वाले पॉइंट से लेकर वहाँ तक के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही है. और पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर मिकदार है क्योंकि वर्क और चार्ज दोनों ही स्केलर्स हैं. अब इससे आगे हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे जिसमें ये चीज़ साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज. सपोज टू कंडक्टिंग प्लेट्स A and B separated by some distance and are oppositely charged. आपके पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स, एक प्लेट का नाम A, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरी प्लेट का नाम B, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. इन दोनों के दरमियान में एक चार्ज मौजूद है और इलेक्ट्रिक लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अच्छा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज WAB is the amount of work done on the charge in displacing it from A to B. यानी चार्ज को इस प्लेट से यहाँ ऊपर ले जाने के लिए. So the work done per unit charge is equal to the electric potential difference between two points A and B. बेटा देखें कि इस प्लेट का पोटेंशियल VA है, इस प्लेट का पोटेंशियल VB है
अगर हम एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यूं ऊपर लेके जाएंगे, तो जब ये चार्ज यहाँ से यूं ऊपर जा रहा होगा, देन वी आर डूइंग वर्क ऑन द चार्ज, एंड वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज is equal to the difference of potential at B and potential at A. A से B तक किया जाने वाला काम WAB, Q नॉट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ potentials at point B and at point A. Suppose two conducting plates A and B separated by some distance D and are oppositely charged. As shown in figure, the electric field between the plates is directed from positive to negative. दो प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है. As WAB is the amount of work done on the charge in displacing it from A to B, यानी A से B तक किया जाने वाला काम जो है वो WAB के बराबर है. In displacing it from A to B, so the work done per unit charge is equal to the work done per unit charge is equal to the electric potential difference between 2 points A and B. VB minus VA is the difference of electric potential at point B and A, or that is equal to work done in displacing the charge from A to B divided by charge Q naught. VB minus VA, WAB over Q naught, as we know that, जैसा कि हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट चार्ज पर किए जाने वाले वर्क के बराबर है, एंड वर्क इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B is the scalar product of force and displacement, as VB minus VA is equal to delta V. Delta V is equal to work done. This is the formula for work defined as the scalar product of force and displacement, और यहाँ पर हम चार्ज फोर्स की वैल्यू रख देंगे as force is equal to QE. Now delta V is equal to F dot D, that becomes equal to F into D cos of 180, और चूँकि cos of 180 नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और आपको पता है कि f इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर है. यहाँ पर हम इस f की ये वैल्यू दर्ज कर देंगे. डेल्टा v इज इक्वल टू क्यू नॉट ई इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और यहाँ पर होना चाहिए एक नेगेटिव साइन. q से क्यू नॉट कट जाएगा, और यहाँ चूँकि नेगेटिव साइन नहीं लगा, ये यहाँ नेगेटिव साइन होना चाहिए, ये यहाँ पे है E इंटू डी. डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी. As the plates A and B are separated by a very small distance, so delta D approaches to delta R. यानी ये जो D है, D is a very small distance and we can write it as D is equal to delta R. Now delta V, the difference of electric potential, is equal to E into delta R.
और यहाँ से E की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। इस इक्वेशन का नाम है इतने हिस्से का ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट is equal to electric field. The equation E is equal to minus delta V by delta R, this equation is known as electric field as negative of the potential gradient. So negative sign indicate that direction of electric field E is along the decreasing potential. From the equation E is equal to delta V by delta R, इसका यूनिट क्या होगा, डेल्टा V का यूनिट वोल्ट, डेल्टा R का यूनिट मीटर, वोल्ट पर मीटर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज V by M विच इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। और पेपर में ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आ चुका है कि प्रूव दैट V by M इज इक्वल टू N by C। वोल्ट ओवर मीटर, वोल्ट क्या है, जूल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। अब आप ये देखें कि जूल जो है ये न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है, और कूलम जो है इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये यूनिट रह जाएगा न्यूटन पर कूलम। दरअसल हमने क्या किया है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट को लिख लिया जूल पर कूलम, और जूल क्या है, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट गया, न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। इसको ज़रा थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। E is equal to minus delta V by delta R. This equation is known as electric field as negative of the potential gradient. Negative sign indicate that the direction of electric field E is along the decreasing potential. From the equation E is equal to minus delta V by delta R, इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। The unit of electric intensity is volt per meter which is equal to the Newton per coulomb. अब ये देखें कि वोल्ट पर मीटर, वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल ओवर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। तो यहाँ पे कूलम को नीचे ले जाएंगे और जूल को लिख देंगे न्यूटन इंटू मीटर, नीचे आ जाएगा कूलम इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट गया और ये रह जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट्स हैं। तो बेटा उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसमें छोटी छोटी बातें हैं और ये हमारी फर्दर स्टडी में काम आएंगी। आपने इस लेक्चर को भी गौर से सुनना है और उसके बाद इस टॉपिक को अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से गौर से पढ़ना है। जो आपके जहन में क्वेश्चन आए वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं और इसको जितना आप कंसंट्रेशन से ज़ोर लगा के पढ़ेंगे आपको उतना ही इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।